Hello friends, today we would like to think about chapter number 6, electromagnetic induction, part 6. You know that very well. In part 5th we discussed most time the topic induction, and first type of induction, mutual induction, we have discussed. In this discussion of mutual induction we also discuss, or we obtain one most time the physical quantity mutual inductance. Mutual inductance of the system of two coils. What do you mean by mutual induction? Whenever two coils are placed very close to each other in such a way that if you pass current through any one coil, then magnetic flux associated with the second coil. And if you change the current passing through first coil, then obviously induced EMF is produced in second coil due to change in magnetic flux. Friends, so this is, you know that very well, very important point, mutual inductance. Now, mutual inductance of the system of two coils, M21, that means the mutual inductance of system of two coils, that means mutual inductance of coil 2 with respect to coil, you can see that 1. After that, M12, mutual inductance of coil 1 with respect to 2, it is equal to M. So M21 or M12 both are same, you know that very well, and this theorem is called reciprocity theorem. What is the, we can say that formula for mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की दो डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी. नंबर 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स इज magnetic flux associated with any one coil. Out of these two coils, magnetic flux associated with any one coil per unit current passing through other coil. This is another definition from this equation number 2. Mutual inductance of the system of two coils is mutual induced EMF. Induced EMF is produced in any one coil per unit rate of change of current. Friends, we have also discussed mutual inductance of the system of two coils depends upon few factors: number of turns, vari-amp, large area, common, you can see that area, and relative orientation of the two coils, separation between two coils, and the type of medium on which coil you can see that wound. Okay, now today we would like to think about one or two numericals based on mutual inductance. Last time we also discussed vari-amp illustration number 6.3 and also discussed IIT 1998 related one numerical. So friend, one numerical just in front of you, there are two coils. Current changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second. Whatever the current passing through first coil, it is I1, and this current already get changed from 0 to 20 ampere in 0.5 second. If the mutual inductance of the system is 1.5 Henry, then find the change in magnetic flux in other coil. Other coil, that means coil number 2. Here current is passing through coil number 1. So obviously magnetic flux associated with the second coil. So friends, your target to find change in magnetic flux of this coil number 2 due to change in current through coil number 1. So very easy. This is, you can see the applied formula. We know that very well. Now whatever the flux, let the phi2 is the flux associated with the second coil and I1 is the current passing through first coil. So whatever the magnetic flux phi2, it is, you can see that magnetic flux associated with the second coil phi2, it is directly proportional to current passing through first coil. So if you remove this proportionality sign, then there is, you know that very well, constant. It is called mutual inductance. So mutual inductance of the system, it is phi2 upon I1 by using this equation. Okay friends, but we would like to think about change in magnetic flux. So change in magnetic flux is equal to delta I1. What I have done, you can see here, delta phi2 is equal to M21 delta I1. So what is the change in magnetic flux? Delta phi2, your target. What is the mutual inductance of the system of these two coils? It is given 1.5 Henry. Don't forget, Henry is the unit of
inductance. Today we would like to discuss it, don't worry. And delta I1 is the change in current. What is the change in current? 0 to 20, so it is 20. So change in flux is equal to, it is, you can see that 10 30, that means 3. So simply you can see that 30 Weber. This is your answer. You can see, so very easy numerical, but this is based on textbook NCERT. This is your unsolved number 9th. The 9th number unsolved we have discussed from textbook NCERT. Superb and very easy. Okay, what is the most important feature of this data? You can see it is very easy, but it is one type of confusing. Why? Because of 0.5 second. Here they mention time. This time is given only for, you can see that, misguiding you. So friends, this is very important. I can say for very easy or ideal paper, this type of numerical can become part of paper. So A to Z of mutual inductance we have discussed based on textbook. JEE नीट का भी एक स्पेशल राउंड बाकी रखा है हमने. एंड नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन. और इस चैप्टर का अगर कोई हीरो है, पूरे चैप्टर में फेराडेज आया, मोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन, मगर ये सबका बाप, और ये पूरे चैप्टर में अगर कोई, जिसे कह सकते बड़े पैमाने पे धूम मचाने वाला है, तो ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी. वी नो दैट वेरी वेल. इंडक्शन that means we can produce induced EMF, or you can see the process of inducing, or I can say producing induced EMF by changing magnetic flux. It is called induction. In mutual induction we are changing, you know that very well. What we have done in mutual inductance? In mutual induction you are changing current passing through one coil and magnetic flux associated with the second coil. But now self induction. Today we would like to think about the most IMP topic, self induction. You can see I have written here JEE NEET और उसके नीचे एक वर्ड धूम. ये जोरदार, और इसलिए मैं जोरदार कह रहा हूँ, दिस इज योर सिंपली इंजीनियरिंग. ये इंजीनियरिंग में भी धूम मचाएगा. JEE नीट का भी शानदार जानदार टॉपिक, इसमें मास्टरी लेने की है. और ये कंपोनेंट की एंट्री अभी क्यों हुई? You can see this one is the very important component, like capacitor and resistor. But capacitor already in chapter 2, resistor already in chapter 3. After that chapter 4, 5 already passed. But why it is in chapter number 6? We will discuss in later. Don't worry. But now be ready for the self induction. Now this is the mutual induction related point. Now self induction. Just a minute. ओके फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्शन. व्हाट हैपन इन म्यूचुअल इंडक्शन? इन म्यूचुअल इंडक्शन मैंने एक स्लोगन दिया था कि कोई दूसरा नाश्ता लेके आए और अपन उड़ाए. तो सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन में बहुत ही इजी. सेल्फ, हमें अपना नाश्ता खुद लेके जाना है और खुद ही उड़ाना है. सो यू कैन सी देयर इज अ कॉइल. नाउ बी कंसंट्रेटेड. दिस इज, यू कैन सी दैट मोस्ट टाइम पे देयर इज अ कॉइल. And now suppose I amount of current is passing through this coil by using a battery. Suppose battery is connected. Because of this connection of battery, I amount of current is passing through this coil. Obviously if you pass current through the coil, then magnetic field, because of magnetic field lines, and you know that very well in this chapter, magnetic field lines, that means magnetic flux. In short, if you pass current through this coil, then magnetic flux associated with this coil. Magnetic flux, that means magnetic field lines, bunch of magnetic field lines. So friends, this is, you can see that these are the magnetic field lines, that is magnetic flux associated with it. Let magnetic flux associated with this coil, it is suppose phi. Whatever the magnetic flux associated with this coil, it is phi. But if you set up a mechanical system, such that whatever the current passing through this coil continuously changes, then what happen? अगर ये कोयल में से जो करंट आई पास हो रहा है, अगर आप कुछ भी करके इसको चेंज करना शुरू करो, तो ये कोयल में से जो आई जितना करंट पास हो रहा है, अगर वो चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ये कोयल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ है वो चेंज होगा. और 22 फैराडे का तो नाम जानते हैं, फ्लक्स चेंज करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ पाओ. तो
अपन लोग जानते हैं अगर इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। मतलब यू कैन सी हियर इफ यू change the current passing through this coil, then magnetic flux associated with the coil changes, and because of change in magnetic flux induced EMF is produced. This process is called simply the self induction, or this phenomenon is called self induction. Why it is called self? क्यों self? क्योंकि आप अच्छी तरह देखो, एक कोयल कोई दूसरी कोयल का सहारा नहीं लेती, अपने साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हुआ है उसी में वो चेंज करके, जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हुआ उसी में चेंज करके खुद ही अपने में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। इसीलिए इस कॉइल का इंडक्शन को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। यू कैन सी हियर टाइम वेरिइंग करंट ऑलरेडी पासिंग थ्रू दिस पासिंग थ्रू दिस कॉइल, and because of varying current continuously you can see that current changes. Because of changing current, coil itself you can see that produce induced EMF by changing magnetic field associated with it, यानी खुद ही by changing its own magnetic flux it produces electric potential, or I can say that induced EMF. तो ये coil अपने साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है उसी में खुद चेंज करके अपने अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ये पूरे फिनोमिनन को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। ओके, और अब सेल्फ इंडक्शन में अपन लोग एक कदम आगे बढ़े। हियर यू कैन सी दैट एज पर डिस्कशन व्हाटएवर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल it is directly proportional to current passing through coil or not. You can see this flux directly proportional to current. कोई बोले सर ये डायग्राम के मुताबिक करंट चेंज कैसे होगा? आप वेरिएबल बैटरी यूज कर सकते हैं, इधर आप रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स। दैट्स व्हाई आई यूज वन वर्ड मैकेनिकल सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इट इज पाई बी। कोई बोले ये बी नया लाया, कोई नया नहीं है, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, E and electric flux. So magnetic flux phi B is directly proportional to current I. If you remove this proportionality sign, then there is constant AL. देखो AL है, मगर हमने देखा था कि कोई भी कोयल है उसके एक टर्न के साथ जो फ्लक्स है वो phi B है। Phi B is the magnetic flux associated with only one turn of the coil. If there are n number of turns, then what is the total magnetic flux associated with it? It is, you can see that I have to use one word, total magnetic flux associated with this coil. It is n phi b, you can see. So this n phi b is directly proportional to I. If you remove this proportionality sign, then there is constant L. याद करो ऐसा ही सीन था, इधर म्यूचुअल इंडक्शन में n phi is directly proportional to I1, मगर इधर आता था I2, क्योंकि सेकंड कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट होता था वो फर्स्ट कॉइल के करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल आया। हियर यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड, दिस L is called simply self inductance, but self inductance of a given coil most IMP. ओके, मगर अब हर बार हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, एक ही वर्ड बोलेंगे इंडक्टेंस, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टेंसेस। नंबर वन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को म्यूचुअल इंडक्टेंस से बुलाएंगे, मगर सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बहुत ही प्यारा वर्ड है इंडक्टेंस। फ्रॉम टुडे सेल्फ इंडक्टेंस दैट मींस इंडक्टेंस। सो दिस L is called inductance of the coil or self inductance of the coil. So what is the formula of self inductance? Self inductance of coil is equal to n phi by I. You can see that this is the masterpiece. I can write here धूम, ये धूम मचाएगा। So if you analyze this equation, then what's the information available from this equation? Very easy. What do you mean by n pi? Total magnetic flux associated with given coil upon a current. So we can say amount of magnetic flux associated with given coil per unit current. It is called self inductance of the given coil. तो सेल्फ इंडक्टेंस हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? बहुत इजी, इस कॉइल में से अगर मैं 1 एम्पियर करंट पास करूं तो कितना वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है
वो होता है अपना सेल्फ इंडक्टेंस। अल्टीमेटली सेल्फ इंडक्टेंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the magnetic flux associated with the given coil per unit current. Super. So this is the master blaster formula. That's why I have written here धूम. तो क्वेश्चन बोर्ड में पूछेंगे ओके क्या एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हमने जो कहानी बताई कि कोयल में से करंट पास करो तो कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है, मगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा अगर अगर ये कोयल में से जो करंट पास हो रहा है वो चेंज होता है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कोयल is directly proportional to the current passing through coil. Total magnetic flux N phi B directly proportional to current I. If you remove this proportionality sign, then there is constant. It is called self-inductance of the coil or inductance of the coil also. From today, self-inductance or inductance both are same word. So if L is in the form of subject, then answer N phi by I. This is the master formula. Dhum formula for MCQ point of view, JEE NEET point of view. L is the self-inductance. What do you mean by self-inductance of the coil? Self-inductance of the coil, that means amount of magnetic flux or magnetic flux, total magnetic flux associated with given coil per unit current. It is called self-inductance. Self-inductance of the coil depends upon few factors, like mutual inductance depends upon few factors. याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस को, नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज एरिया, कॉमन एरिया, रिलेटिव ओरिएंटेशन और रिलेटिव और आई कैन से द सेपरेशन। मगर म्यूचुअल इंडक्टेंस में ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, सेपरेशन ऑफ कॉइल्स था क्योंकि वहां पे दो कॉइल थी, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की कंपैरिजन में सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, शेप एंड साइज ऑफ दिस कॉइल, क्योंकि इधर भी फ्लक्स आएगा तो एरिया आएगा, डोंट वरी। नंबर ऑफ टर्न्स एंड यू कैन सी दैट करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल, बट करंट तो अपन लोग इंडिपेंडेंट हो जाएगा लास्ट में, डोंट वरी, क्यों वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो एल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। थर्ड नंबर वेरी आईएमपी, द टाइप ऑफ मटेरियल ऑन विच दिस कॉइल इज सिंपली वुंड, दैट मींस किसके ऊपर वाइंडिंग किया है, वो कॉइल का मटेरियल देखना होगा। ज्यादातर सॉफ्ट आयन यूज करते हैं क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी बेस्ट होती है, इसलिए। सो मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स एंड फैक्टर्स। अब अपन लोग इस क्वेश्चन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड में अब ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो इसके पूछने के चांसेस है। देखो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस में से एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन बोला था, गिव टू डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें करीबन दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी, वो है क्या, एक्सेप्ट दिस इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। व्हाट्स द क्वेश्चन, accept this equation. L is equal to, first of all we will remove this portion, you can see, because this is already we have discussed. So question सुनना बराबर, question है accept this equation, L is equal to n phi by I, accept this equation and obtain the formula of self induced EMF। तो अपन लोग शुरू करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ induced EMF, formula for self induced EMF। so ये इक्वेशन को एक्सेप्ट करके हैं, so start, L is equal to n phi by I, you know that very well, what do you mean by L? कोई बोले सर B रह गया, तो लगा तो B लो इसको, तो बस B simply representing magnetic flux, don't worry। so I can write Li is equal to n phi B। अपना टारगेट है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो पता चला, क्योंकि ये जो कॉइल है उसमें से जो करंट पास हो रहा है अगर वो आप चेंज करो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एक बंदा चिल्ला चिल्ला के नारा लगाता है, फेराडे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ
we have to think about one more important point. Here you can see that total 4 quantities: air, self-inductance, I, current, and number of turns, and 5 is the magnetic flux associated with this coil. But here 2 quantities are variable and 2 quantities are constant. L is the constant. So by taking differentiation of this equation with respect to time, so L constant di by dt and d phi b by dt, you can see most IMP di by dt and d phi b by dt. Why here n is the constant and L also constant, so out of differentiation, now as per Faraday's law, as per Faraday's law, what is the Faraday's law? Induced EMF epsilon is equal to minus n d phi b by dt. याद करो, rate of change of magnetic flux, negative of rate of change of magnetic flux is equal to magnitude. तो देखो n d phi b by dt है, so I can write minus n d phi b by dt. ये माइनस n दे दी इधर क्योंकि हमें प्योर n d phi b by dt चाहिए. तो instead of n d phi b by dt we can put minus epsilon. So finally I can put L di by dt is equal to minus epsilon. Instead of this term you can see minus epsilon. So epsilon is equal to minus L di by dt. This is, you can see there, once again the master blaster formula, धूम formula. ये भी बड़े पैमाने पे यूज होने वाला है. दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट. इफ यू पास whatever the current passing through this coil, if you change this current, magnetic flux changes, induced EMF. तो ये coil के अंदर कितना induced EMF प्रोड्यूस होगा ये इक्वेशन से पता चले. मगर क्वेश्चन वापस रिपीट में करता हूँ. एक्सेप्ट दिस इक्वेशन and obtain the formula of self induced EMF and define self inductance. इस फॉर्मूला के ऊपर से अपन लोग सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें. सो योर टारगेट टू डिफाइन एल. सो एल शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. तो एल को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ. व्हाट हैपन इफ एल इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट? सो एल इज इक्वल टू epsilon upon di by dt. You can see. Ready? So now from this equation I would like to define self inductance. What is the self inductance? दिख ही रहा है देखो. Self inductance of a given coil. मैं definition explain कर रहा हूँ, define कर रहा हूँ without any type of we can say the mugging up process. Simple you have to focus on equation. Just check it here. मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आपको इधर देखना है. Self inductance of coil is equal to self induced EMF produced per unit. What do you mean by di by dt? Di by dt rate of change of current. Self induced EMF is produced in a given coil per unit rate of change of current. This is called unit rate of change of current. It is called the self inductance of the coil. The self-induced EMF is produced per unit rate of change of current. It is called the self-inductance of the coil. There are two definitions of self-inductance. Number one, magnetic flux associated with coil per unit current, and induced EMF is produced in coil per unit rate of change of current. दोनों बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन जैसी है, मगर उसमें सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. इसमें अपन सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स क्योंकि वहाँ कोई नाश्ता लेके और आता था तो उसका डब्बा उठाना था, इसलिए वहां बंदे एक से ज्यादा होंगे, 2 बंदे. इधर अपन लोग जानते हम ही कोने में बैठ के अपना ही नाश्ता उड़ाते, किसी को पता ना चले, इसलिए जो भी होगा वो सिर्फ इस कॉइल के साथ ही होगा. तो दिस इज मोस्ट टाइम की. वंस अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट मींस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस per unit rate of change of current. It is called self inductance of the coil. Masterpiece. मगर सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों अभी पता चलने वाला है, डोंट वरी. अब दोस्तों इसमें अपन लोग एक टॉपिक बाकी है वो देखते हैं, वो है यूनिट. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? मोस्ट IMP. सो आई विल रिमूव दिस डायग्राम बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायग्राम प्रेजेंट है, because
ये यूनिट का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी राइट हियर यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. डायमेंशनल फॉर्मूला तो पूछेंगे वो आपको होमवर्क में योरसेल्फ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, यूनिट नंबर 1, बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट हेनरी, H is the unit. H that means Henry. Henry is the unit of self inductance. मैंने बताया था जेम्स हेनरी और माइकल फेराडे दोनों ने एक साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे. याद करो पार्ट 1, एक लंदन में था, एक यूएसए. ये जेम्स हेनरी जो था वो यूएसए में, उसने भी जबरदस्त काम किया. इसी के कारण उसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया यूनिट के तौर पे. H is the unit of, हेनरी is the unit of self inductance, पहला यूनिट. और माइकल फेराडे को कैपेसिटेंस में दिया फेराडे. ओके, सेकंड यूनिट देखो, यूनिट चेक करते जाना. सेकंड यूनिट अपन लोग इसके ऊपर से डिराइव करें. एल एप्सिलॉन का यूनिट इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट. वोल्ट अपॉन डीआई बाई डीटी. डीआई बाई डीटी यानी एम्पियर पर सेकंड, यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. दिस इज द सेकंड नंबर यूनिट. अब थर्ड नंबर यूनिट इसी के ऊपर से वोल्ट पर एम्पियर. एनीबॉडी? जेवियर्स के एक सर ने एक क्वेश्चन पूछा था वोल्ट पर एम्पियर रिलेटेड यूनिट, यानी कि ये मैं अभी आंसर बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन. वोल्ट पर एम्पियर, एनीबॉडी? सो वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I. सो V बाय A ओम इनटू सेकंड. ये क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पूछा हुआ था कि ओम इनटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी. ऑब्वियसली ओम इनटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. चौथा यूनिट इधर से वेबर फ्लक्स का, करंट का एम्पियर. सो वेबर पर एम्पियर इट इज आल्सो अनदर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो ये चार यूनिट दिमाग में रखना. इसमें सबसे आईएमपी वाला ये खास याद रखना है. सो नंबर 1 हेनरी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, वेबर पर एम्पियर बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, एंड ओम इनटू सेकंड बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन. यू कैन सी. सो दिस 4 यूनिट्स. अब इसके ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यही यूनिट था, हेनरी. यू नो दैट वेरी वेल दिस पॉइंट्स. सो फ्रेंड्स, we have discussed most important topic, self induction and self inductance. What do you mean by self induction? म्यूचुअल इंडक्शन में अपन लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ डिराइव करते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते थे, but by considering a system of 2 coils. In self induction we have to consider only one coil. You have to pass current through the coil, and because of current magnetic flux, if you change the magnetic flux by changing the current, we can obtain induced EMF. So ये सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है, कोयल अपने साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट है वो अपना खुद ही का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके खुद ही में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करे, तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. मगर सेल्फ इंडक्शन है उसके साथ जो एसोसिएट क्वांटिटी है वो है सेल्फ इंडक्टेंस. सपोज हमने बताया था टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल इज N/B and current passing through coil is I. So N/B is equal to Li. If you remove this proportionality sign, then there is proportionality constant L. L को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस कहो या खाली इंडक्टेंस कहो, दोनों का मतलब अब से एक ही होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है N/B/I. ये फॉर्मूला दिमाग में मुझे चाहिए. दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस इक्वेशन को एक्सेप्ट करो और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करो. तो हमने ये शुरू किया, पहले हमने दोनों क्रॉस कर दिए Li, फिर डिफरेंशिएशन लिया. सिर्फ I का डिफरेंशिएशन होगा, फ्लक्स का होगा क्योंकि वही दो वेरिएबल है. di/dt and dϕ/dt होता है माइनस एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ फेराडेस लॉ. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस L di/dt. ये भी धांसू फॉर्मूला, ये भी धूम मचाएगा. कैसा धूम मचाए बाद में. ये सभी में जो माइनस साइन है वो सिंपली लेंस लॉ रिप्रेजेंट करता है और वो बता रहा है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट होता है. किसके ऑपोजिशन में वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो. लेंस लॉ है वो जिसे कह सकते हैं ज्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जनरेट नहीं करेगा. ओके, कुछ चीजें है उससे पहले अपन लोग कंसीडर कर लेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड दिस आर द यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. हेनरी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ओम सेकंड, वेबर पर एम्पियर. सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया,
and you know that very well, shape and size of the coil and the type of material on which coil is wound, you can see that. So these all factors affecting self inductance, supreme topic, these are the masterpiece. So friends, analyze at least one time. ओके दोस्तों, तो अब अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ इंड्यूस्ड डीएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस के फंडे हमने डिस्कस किए। अब अपन लोग सेल्फ इंडक्टेंस है वो कुछ पर्टिकुलर लेवल पे डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक दो चुटकुले जिसे कह सकते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं। चुटकुले मतलब चुटपुट न्यूमेरिकल्स, जो यूं ही चुटकियों में हो जाए ऐसे, बराबर। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल पहले ऐसा ले लेता हूँ। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस गायब, सेल्फ इंड्यूस्ड डीएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस का ही जमाना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड ही आएंगे, सिंगल कॉइल। मगर अभी कोई बोले इसमें, आप बोल रहे थे कि ये तो हीरो है मेन वन, अभी बाकी एंट्री, डोंट वरी। जिसका हमें इंतजार है वो अभी आया नहीं है, डोंट वरी। तो दिल थाम के बैठना अगर दिल हो तो, क्योंकि आजकल एक्सचेंज हो जाते हैं इसलिए। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ what is the, we can say the question here, current falls from 5 to 0 ampere, there is a one coil, whatever the current passing through this coil, it changes from 0 to or 5 to 0 ampere। शुरुआत में 5 एम्पियर था, वहां से सीधा 0 हो गया। ओके, in 0.1 second, then induced EMF produced, it is 200 volt, induced EMF it is 200 volt। then what is the self inductance of the coil? तो अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ रिलेटेड फॉर्मूला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डी आई बाई डी टी माइनस, अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। एप्सिलॉन दिया है 200, डी आई बाई डी टी, डी आई change in current, it is 5 to 0, so final initial current 5 था, final 0, so 0 minus 5 divided by time, it is 0.1। okay, if you simplify then you can see 200 into 0.1 minus 5 cancel, so inductance का सीधा आंसर आएगा 4 Henry। this is your question from textbook and NCERT number 6.8, you can see टेक्स्ट बुक का 8th नंबर का आंसर हमने कंसीडर किया है। तो सभी क्वेश्चंस इजी है, नो डाउट, डोंट वरी। तो ये बहुत ही इजी, मगर आपको जान के ताज्जुब होगा, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट लेवल पे आ चुके हैं, डोंट फॉरगेट। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। Okay friends, so first of all we would like to derive self inductance of, ये भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में एक न्यूमेरिकल था, ये थ्योरी के तौर पे 2 मार्क्स में आ सकता है। दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्या, ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, long solenoid having number of turns n, current passing through I, length of solenoid L, radius of solenoid R, you can see ऐसे कुछ characteristic दी है। So first of all this is your solenoid, you can see, and I amount of current passing through is length L, you can see number of turns n। What's your target? self inductance। so अपन लोग पहले फेंकेंगे फॉर्मूला, इसको मैं स्मॉल l कर देता हूँ। सो सेल्फ इंडक्टेंस, ये 2 मार्क में थियरी पूछ सके, न्यूमेरिकल भी, डोंट फॉरगेट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस, जनरल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस n phi b upon I, याद करो, अभी हमने डिराइव किया था मोस्ट टाइम पे। तो n is the total number of turns, phi b, what do you mean by phi b here? Phi b, that means magnetic flux
associated with solenoid. So what is the formula of magnetic flux? Magnetic flux, that means area into magnetic field. Area of cross section, suppose A रखते, don't worry, because we would like to derive equation in the form of A, and magnetic field here B. What is the magnetic field produced inside very long solenoid? Chapter number 4, mu naught small n into I. So phi B A mu naught small n. What do you mean by small n? The number of turns per unit length. What is the formula of small n? याद करो, small n मतलब total number of turns upon total length. Total number of turns n, total length L. So instead of small n, I can put capital N upon L into I. This is your magnetic flux associated with this very long solenoid. So from equation number 1, एकदम पप्पू type theory but easy. N by I, you can see that easy or IMP. Phi B already with us. It is mu naught NIA upon L. You can say mu naught NIA upon L. I cancel. So what is the final answer? L is equal to mu naught N into N square A upon L. This is the most IMP formula. ये जहन में ऐड कर देना, इसका सीधा यूज होने वाला है. Very very IMP. Whenever you are dealing with solenoid, for very long solenoid, inductance given by equation mu naught N square A by L, and from this equation you can see self inductance of solenoid is directly proportional to the square of a number of turn. You can see. दूसरी important point, it is independent of current. Check it. In this equation there is no current. ये भी most IMP point. इसके रिलेटेड तो ऑलरेडी एमसीक्यू है, डोंट फॉरगेट. दिस इज द मास्टरपीस. अब इसमें थोड़ा जेडब्ल्यू नीट का तड़का मारे. सो इफ यू थिंक अबाउट द जेडब्ल्यू नीट, दिस इज, यू कैन सी दैट वी हैव डिस्कस्ड ओनली फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड. नाउ सेम स्टोरी दे कैन आस्क अबाउट टोरॉइडल रिंग. सो वी राइट हियर टोरॉइड. सो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड? तो यही इक्वेशन देखो, L is equal to, we write same equation, L is equal to mu naught N square A upon L. But what do you mean by L? L is the length of solenoid, but here solenoid is already in the form of circular path, toroid, circular ring. Okay, तो ये toroid है, देखो ऐसा. इसका रेडियस अपन लोग कैपिटल R ले, so mu naught N square A upon 2 pi R. This is also masterpiece, you can see. So two equations just in front of you. This is the self inductance of very long solenoid. This is self inductance of toroidal ring. तो ये दोनों का यूज हो सकता है. Don't forget. So we have discussed JEE NEET point of view question. ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, तो इसको जरा ध्यान में रखना. एनालाइज मोस्ट इंपोर्टेंट हो. तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. एक ज फॉर्मूला फेंको, फ्लक्स फाइंड करो. फ्लक्स के लिए एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड का जानते हो, उसको हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ में कन्वर्ट कर दिया. ये इधर रख के सिंपलीफाई. मोस्ट इंपोर्टेंट, ये शॉर्टकट बोलना नहीं है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. अब हमने सेल्फ इंडक्टेंस का जो भी पॉइंट्स था वो डिस्कस कर लिया. अब ये चीज क्या है और किस तरह इसकी एंट्री हो रही वो जरा देखना. यहाँ से ये लेक्चर के एंड तक आपको अब जिसे कह सकते खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है और ये जो चैप्टर है कैन से इसी टॉपिक के कारण वैल्यू पोजेस करता है. मोस्ट IMP. सो गिव योर, वी कैन से दैट more than 100% फंडामेंटली. मेन तो चीज है फंडामेंटली. इसको लोग फंडामेंटली पढ़े नहीं तो ये लोगों को बहुत हैरान परेशान करने वाला है. तो जरा देखना. नाउ यू कैन सी देयर इज अ कॉइल. ओके, अपन लोग जानते कॉपर कॉइल, इस तरह कॉइल ऐसी समझो. तो ये जो कॉइल है,
उसके साथ मैं जिसे कह सकते हैं कि बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, इसका पोटेंशियल V है और ये जो कोयल है, अब अपन लोग इसको नया नाम देने जा रहे हैं। जनरली कोयल को अच्छी लैंग्वेज में इंडक्टर कहते हैं। अब दोस्तों देखना चैप्टर नंबर 2, उसमें एक बंदा आया हीरो कैपेसिटर। फिर आया चैप्टर नंबर 3, उसमें आया दूसरा हीरो रजिस्टर। और ये आया 6 2 3 जा 6 चैप्टर में आ रहा है तीसरा हीरो इंडक्टर। सो अब इसको हटा के इधर लिख रहा हूँ इंडक्टर। वी वुड लाइक टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडक्टर। कोई बोले वो बाद में डिस्कस करना, पहले इंडक्टर चीज है क्या। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर? Inductor, that means the component of electrical circuit. Component of electrical circuit possess self inductance. It is called inductor. कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा कंपोनेंट आपको पता चले जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी पोजेस करता हो, यानी कि पर एम्पियर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट कर पाए, तो वो कंपोनेंट को इंडक्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो तीन हीरोस है, नंबर 1 कैपेसिटर, नंबर 2 रजिस्टर एंड नंबर 3 इंडक्टर। उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर बहुत ही जल्दी आ गए 2 और 3 चैप्टर। इसको आने में इतनी देर लगी, उसके पीछे का राज है चैप्टर नंबर 7। और बोले अभी क्या है, अभी चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 7। यस, you can see this is coil and at present time this coil is connected with battery of voltage V। अब अपन लोग इसको कोयल नहीं बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे। थोड़ी देर समझो, ये इंडक्टर दैट मींस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई कैन से कोयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कोयल होगी, उसको आप इंडक्टर कह सकते हो। मगर ये कोयल और इंडक्टर इफेक्टिव कब है, जस्ट चेक। अभी ये जो डायग्राम है, टेल मी फॉर दिस डायग्राम this inductor plays very important role or not, or this inductor can be considered as a hero or not? Answer is not। जैसे इंडक्टर को ऐसी कोई बैटरी के साथ कनेक्ट करो, ये कौन सी बैटरी है, दिस इज डीसी बैटरी। तो ऑब्वियसली ये जो इंडक्टर है उसमें से जो करंट पास होगा वो भी डीसी करंट होगा, ये डीसी करंट है। सो डीसी करंट दैट मींस कांस्टेंट करंट। तो इंडक्टर पहले तो कांस्टेंट करंट को एक ज वर्ड बोलता है, हटा सावन की घटा, मतलब उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस इंडक्टर में से, यानी कि सिंपली आई कैन से कोयल में से अगर आप डीसी करंट फ्लो करवाओ, तो ये इंडक्टर है वो इंडक्टर के तौर पे काम नहीं करेगा, वो एक मामूली सा कॉपर का कोयल के तौर पे काम करेगा और अपने में से करंट पास करवा के निकल जाएगा। ना तो कोई यानी कोई दूसरा फंडा होगा नहीं। ओके, कोई बोले मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा, मगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार एसोसिएट हो गया उसके बाद तो आप जानते हो चेंज तो होने वाला नहीं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो तो ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई कांसेप्ट अप्लाई होगा ही नहीं। इसीलिए जब इंडक्टर वर्ड आए तो याद रखना उसके साथ ऐसा मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट करो जो उसमें से कंटिन्यूअसली वेरिइंग करंट और कंटिन्यूअसली चेंजेबल करंट पास करे। अगर ये डीसी बैटरी है तो ये इंडक्टर डीसी बैटरी के लिए सिंपल एक वायर के तौर पे काम करेगा, बाकी कुछ नहीं। ये देखो इसकी जगह वायर होता तो क्या होता, ये इसमें से करंट पास होता और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, वही बस, उसके बाद कुछ नहीं। मगर यही डीसी बैटरी में इधर मैं वेरिएबल बैटरी कर दूं या इसकी जगह एसी सोर्स कनेक्ट कर दूं, दिस इज द सिंबल फॉर एसी बैटरी। तो एसी करंट तो ऐसे जाएगा, यू कैन सी। तो एसी करंट यू कैन सी कंटिन्यूअसली चेंजेस। If this inductor is connected with AC source, then what happens? Then whatever the current passing through this inductor continuously changes. Because of change in current, what happens? Continuously magnetic flux associated with this inductor changes, and change in magnetic flux induced EMF. और देखो इस इंडक्टर में से अगर ऐसा वेरिइंग करंट पास करे, कंटिन्यूअसली बदलता हुआ करंट पास करे,
तो ये इंडक्टर एक बैटरी के तौर पे काम करेगा क्योंकि खुद इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। सुपर। इसलिए पहला पॉइंट, इंडक्टर कोई भी सर्किट में हो, पहले चेक करो वो सर्किट में ऐसा कोई सिस्टम है जिसके कारण इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर इंडक्टर के साथ ऐसी पकड़ी जैसी डीसी बैटरी कनेक्ट कर दो तो वो इंडक्टर है वो अपना हीरोइज्म बताएगा नहीं। इधर इंडक्टर अपना हीरोइज्म बताएगा क्योंकि इधर अगर एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेल्फ इंडक्टेंस के अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर? इन a component in electrical circuit, component in a given circuit possess self inductance or property of self inductance, then it is called inductor. What is the symbol of inductor? This is the symbol of inductor. Okay, इसके ऊपर ऐसा रखा जाता है एल, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने बताया है। सो इंडक्टर का इंडक्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर। कोई बोले मगर आप इतना अंग्रेजी लेके कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस को क्यों याद कर रहे हो? देखो चैप्टर नंबर 6, पहली बात मैंने बताई कि इस चैप्टर ने इस कंपोनेंट ने इधर आते आते इतनी देर क्यों कर दी, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का घर पे आपके पास टेक्स्ट बुक है तो हेडिंग देखना, चैप्टर 7 का नाम है एसी करंट। इसीलिए अब इसके साथ अगर उसके पहले चैप्टर सिर्फ डीसी बैटरी के साथ इंडक्टर को रखते तो इंडक्टर इंडक्टेंस का कोई रोल प्ले करता नहीं। दूसरी बात, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 7 है उसमें 3 त्रिदेव, कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, ये तीनों 3 त्रिदेव एक साथ डांस करने वाले हैं सुप्रीम। क्यों, कैसे वो डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने इसको याद किया। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, इंडक्टर दैट मींस द कंपोनेंट ऑफ सर्किट possess self inductance, it is called inductor, this is called symbol। अब सिंबल हो तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा, जिस एंड से करंट की एंट्री हो, the end through which current enters, it is considered positive, and end through which current leaves the inductor, it is considered negative। जहाँ से करंट बाहर आए वो नेगेटिव, जहाँ से जिसे कह सकते करंट एंट्री ले वो पॉजिटिव। तीसरा और चौथा मोस्ट टाइम पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। चलो इससे पहले मैं पीडी अक्रॉस कैपेसिटर बता देता हूँ या पूछता हूँ, फिर पूछता हूँ पीडी अक्रॉस रेजिस्टर। इधर एक कैपेसिटर है, इधर रेजिस्टर है और इधर इंडक्टर है। चलो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, ये बहुत ही बड़ा राक्षस है अगर इसको अच्छी तरह ना समझा तो, क्योंकि ये सब कुछ अब साथ में कंबाइन होने वाला है। व्हाट इज द पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पीडी अपन लोग जानते हैं Q by C, you can see because C is equal to Q by V, so VC is equal to Q by C। what is the PD across resistor, तो अपन लोग वो भी जानते हैं IR। so what is the PD across inductor, ये हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। PD across inductor that means induced EMF, देखो minus L di by dt, this is the formula of PD across इंडक्टर। ये मैंने बोला था धूम मचाएगा। कोई भी इंडक्टर है उसके अक्रॉस इतना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, यानी वो इंडक्टर अपने आप में एक बैटरी बन जाता है। और बैटरी बनने के बाद वो कैसे धूम मचाता है वो अपन लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज से 4 पॉइंट्स इंडक्टर के याद रखने के। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर, कंपोनेंट ऑफ द सर्किट possess self inductance, it is called inductor। symbol of inductor, ये symbol भी एक बार में पूछा हुआ बोर्ड में। the end through which current enters it is positive, end through which current leaves it is negative, and most time what is the formula potential difference across inductor, it is minus L di by dt। अब अपन लोग देखो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब अपन लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके किरचॉफ्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें किरचॉफ्स लॉ, यस, किरचॉफ्स लॉ हमने कैपेसिटर में भी अप्लाई किया, किरचॉफ्स लॉ हमने रेजिस्टर में भी अप्लाई किया।
तो ये भी अपना तीसरा हीरो है, सो वी हैव टू अप्लाई इट, नो डाउट अबाउट इट। अगर अब हर एक बंदा देखे कौन सी कहानी में बताने जाने वाला, जरा देखो। दिस इज द इंडक्टर, अब मैं इंडक्टर ही बोलूंगा। नाउ यू नो दैट कोयल से अच्छा वर्ड है इंडक्टर। ओके, सो दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी, obviously current I passing through this inductor. If whatever the current passing through this inductor continuously changes, अब changes word आए तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट चेंजेस। सो सपोज हाई अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर, बट कंटिन्यूअसली दिस करंट चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजिंग करंट। करंट चेंज होने का कुछ भी, इधर हमने रजिस्टर रख दिया या रिओस्टेट या हमने वेरिएबल बैटरी यूज की, डिपेंड्स अपॉन, यू डोंट वरी, बट अल्टीमेटली आई कैन से करंट जो इंडक्टर में से पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है, डोंट वरी। Obviously, current passing through inductor changes. So magnetic flux associated with inductor changes. Magnetic flux changes. What happen? Induced EMF. तो अब ये जो इंडक्टर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, मगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक किक मारता है और लात मारता है, और एक ऐसी किक मारता है जिसको अपन लोग कहते हैं, अगर आप समंदर की बात करना, समंदर में अभी मॉनसून चल रहा है, खास करके आपने मुंबई की बारिश के बारे में सुना होगा। जब बहुत ही बारिश होती है तब मुंबई में पानी भर जाता है और पानी का फ्लो नहीं होता है, तब आपने सुना होता है कि जो समंदर का पानी है वो बेग मारता है। इसके कारण क्या होता है कि बारिश का पानी समंदर में नहीं जा सकता है, उल्टा वो सिटी में आता है। तो इधर भी ऐसा है, ये इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बेग मारेगा। किसको बेग मारेगा? ये है जिसे कह सकते हैं कि समंदर का पानी, और ये है अपना सिटी का पानी और ये है समंदर। तो ये पानी जिसे कह सकते हैं इसके ऑपोजिशन में आएगा। मतलब कहने का मतलब इधर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, whatever the induced EMF produce across this inductor, this induced EMF always in opposite way or opposite direction of this driving voltage। इसको ड्राइविंग वोल्टेज कहते हैं क्योंकि ये करंट को ड्राइव करने वाला है। तो इधर जो पोलैरिटी होगी वो ऐसी होगी, देखो प्लस माइनस, यानी कि मैं इधर बताऊं, इधर जो बैटरी बनेगी वो कुछ ऐसी बैटरी बनेगी। क्यों बैटरी पता चला ना, बिकॉज दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ बैटरी। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है, अगर ये करंट कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होगा तो ये इंडक्टर के अक्रॉस कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ये माइनस साइन चिल्ला के क्या बता रहा है वो अपन लोग देखेंगे मैथमेटिकल पॉइंट में, कि ये माइनस साइन बता रहा है कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये ड्राइविंग वोल्टेज, यानी जो मेन बैटरी कनेक्ट की है उसके ईएमएफ के ओपोजिशन में है। क्योंकि ये बैक ईएमएफ का नेचर यही है, ये बैक ईएमएफ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, और माइनस साइन बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। कोई बोला आप लेंस लॉ तो समझा नहीं रहे हो, और कैसे पता चले? तो लेंस लॉ कुछ नहीं है, लेंस लॉ यानी एक बिगड़े बाप की औलाद। बोले कैसे? वो नो डाउट मैं थियरी तो पूरी समझाने वाला हूँ। लेंस लॉ इसलिए मैं कहता हूँ बिगड़े बाप की औलाद, क्योंकि हम सबको हमारे पेरेंट्स ने ये मकाम तक पहुंचाया। मैं यहाँ पे, वहाँ भी कहाँ पहुंचोगे? सपोज कोई स्टूडेंट हो, अपन लोग किसी का भी नाम ले, सपोज कुलदीप है, यासु है, कैसे मैं जनरल नाम बोल रहा हूँ, कोई भी, तो ये सब लोगों को उसके पेरेंट्स मस्त पढ़ाते, इतना खर्चा करके उसको बहुत ही अच्छे हाई फाई लेवल पे पहुंचा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके कारण ये बंदा बना है उसी के ओपोजिशन में आ जाता है, यानी पेरेंट्स के ओपोजिशन में आ जाता है। बस जिसके कारण बंदा बना उसी के ओपोजिशन में, ये याद रखना है। दिस इज लेंस लॉ। अब टेल मी, ये इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ किसके कारण? ये बैटरी के कारण, क्योंकि बैटरी ने करंट फ्लो किया, वो करंट चेंज किया, करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन ये बैटरी है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ये बंदा जिसके कारण वो बना है, किसके कारण बना है? बैटरी के कारण, उसी के ओपोजिशन में। दिस इज लेंस लॉ। डिटेल में तुम्हें मस्त समझाने वाला, डोंट वरी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बेटा और ये बाप यानी पेरेंट्स, पेरेंट्स के कारण बेटा बना, आज यही बेटा पेरेंट्स के ओपोजिशन में आ जाता है कभी कभार।
क्योंकि उसके साथ कोई ऐसी बंदी जुड़ती है जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभार सेटलमेंट नहीं होता है। मगर दोस्तों ये लेंस लॉ में मैं बताने वाला हूँ, पेरेंट्स को कभी भी जिसे कह सकते हैं दुखी मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड आपके घर में ही है। एनीवे फ्रेंड्स, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी इधर डेवलप होगा वो ईएमएफ इसके ऑपोजिशन में होगा। यानी ये बैटरी की टर्मिनोलॉजी ऐसी है, तो ये जो ईएमएफ यानी कि ये इंडक्टर बैटरी के तौर पे बिहेव करे तो उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी। देखो इसका करंट और इसका करंट ऑपोजिट होगा। तो अब ये बैटरी है वो ये इंडक्टर में से करंट को जाने में रोकेगी। बस यही इंडक्टर का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसका नेचर है। जो भी इंडक्टर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। अभी करंट पास हो रहा है उसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट को अपोज करेगा। करंट को अपोज करना हो तो ऐसी पोलैरिटी रखनी पड़े, देखो यानी जनरेट ऑटोमेटिकली होती है, रखनी पड़े नहीं ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द रीजन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्योंकि ये ईएमएफ बैक मारता है इस ईएमएफ को। दैट्स व्हाई whatever the self induced EMF produced in any coil it is also called back EMF most IMP। तो ये मैंने बैक EMF का कंसेप्ट डिस्कस किया। आज से याद रखना कोई भी इंडक्टर में से आप करंट फ्लो करवा और अगर वो करंट चेंज करवा के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हो तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी तरह प्रोड्यूस होगा ताकि वो करंट को ओपोज करे। एग्जांपल नंबर 1 देखना, अभी मैं साथ में कंसेप्ट भी डिस्कशन शुरू करता हूँ, ये लिख देना क्योंकि अब अपन लोग जेडब्ल्यू नीट में ये समझ लो ये सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक मस्त टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेंस लॉ का फंडा पता चला, जिसके कारण बंदा बना उसी के ओपोजिशन में। पेरेंट्स का एग्जांपल याद रखना। ओके, अब देखो अपन लोग इधर एक इंडक्टर रखते हैं और अब मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये लास्ट पॉइंट जेडब्ल्यू नीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ लिख देना है बाद में। सो यू कैन सी दिस इज इंडक्टर एंड इट इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी। इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है। सबसे पहला केस लेते हैं, whatever the current passing through this inductor, suppose its value increasing। अब मैं बोला चेंजेस नहीं रखना, चेंजेस दैट मींस either current increases or decreases। ओके, तो अपन लोग जिसे कह सकते पहला केस लेते हैं, if current increases with time, if current passing through this inductor increases, then what happen? Then di by dt is considered positive क्योंकि rate of change of current positive। So what is the induced EMF or self induced EMF? देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा पता चला, ये इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही मतलब करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इधर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यानी अब इंडक्टर बन गया बैटरी, वो ईएमएफ का फॉर्मूला में फेंकता हूँ। देखो एल डी आई बाई डी टी, मगर डी आई बाई डी टी लेना है पॉजिटिव तो आंसर वही का वही रहेगा। यू कैन सी मैं लिखता हूँ डी आई बाई डी टी की जगह प्लस डी आई बाई डी टी। सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस साइन बता रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कब होगा, देखो मैंने बताया राइज अप वोल्टेज, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज फॉर किरचॉफ्स लॉ। ये रहा बैटरी, अगर आप इस तरह जा रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव पोल टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, देन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड सिंपली ड्रॉप अप। एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस पोटेंशियल इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड राइज अप। इधर पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजेस, सो दैट मींस हियर whatever the we can say that this inductor behaves like a battery, what is the polarity of this battery? देखो इधर क्यों, क्योंकि इधर माइनस साइन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, so I will write here drop of voltage because of drop of voltage। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कब होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई देखो ये रहा। तो ये इंडक्टर इस तरह बैटरी के तौर पे काम करेगा
और इसकी पोलैरिटी ऐसे होगी। और ये आपको याद रखना है, जब करंट इंक्रीज विथ टाइम तब ये कॉन्सेप्ट। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, इफ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर डिक्रीजेस विथ टाइम। देखना ये कॉन्सेप्ट ही मैंने दोस्तों काफी लोगों को इसको समझ में नहीं आता, यही प्रॉब्लम है, मगर अपन लोग इसमें मास्टर बनने वाले हैं। डोंट फॉरगेट, सो इफ करंट डिक्रीजेस विथ टाइम, so obviously di by dt we have to consider negative. Here di by dt positive because increases, here decreases negative. So what is the induced EMF? So self induced EMF of inductor epsilon is equal to minus L। इधर di by dt देखो मैंने पॉजिटिव लिया था, मगर अब इधर di by dt we have to consider negative। So what is the induced EMF? Epsilon is equal to plus L di by dt। You can see sign plus इधर minus minus sign drop of voltage, plus sign increases rise of voltage। You can see here I have to think about drop of। तो इधर जिसे कह सकते हैं कि मैं इसका डायग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ। इधर जो इंडक्टर है इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है, ये इंक्रीजिंग करंट है, ये डिक्रीजिंग करंट। तो इधर जो बैटरी बनेगी वो ऐसा होगा, देखो दिस इंडक्टर नाउ बिहेव्स लाइक अ बैटरी, और इसका इस बैटरी का ईएमएफ इतना होगा, मगर ये बैटरी की पोलैरिटी आप देखो ये होगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव देन राइज अप वोल्टेज। सो वी राइट हियर राइज अप वोल्टेज। सुपर, ये पहला राउंड है, डोंट वरी। आपको सिंपल स्टोरी मैंने बताई है, इससे आपके हर एक फंडे क्लियर। वंस अगेन, कोई भी इंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है अगर वो इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो मतलब याद रखना इंडक्टर, देखो कॉन्सेप्ट पहले बराबर होने चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुछ पॉइंट स्किप करके बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पॉइंट स्किप किए डोंट वरी। देखो करंट इसमें से जो पास हो रहा है इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा मतलब करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब फैराडेज के लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इधर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ये इंडक्टर बन गया बैटरी, क्योंकि वो खुद ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है इतना। ये ईएमएफ इंक्रीज के कारण मिलता है नेगेटिव। देखो नेगेटिव ईएमएफ का मतलब ये पोटेंशियल, ये डिक्रीजेस पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज के तौर पे मिलेगा। और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कब मिलेगा? अगर ये इंडक्टर बैटरी बने तो उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह होगी, यानी ए एंड बनेगा पॉजिटिव एंड और ये बनेगा नेगेटिव। और आप देखो ये पोलैरिटी के कारण ये करंट को अपोज करेगा मोस्ट टाइम पे। इधर देखना, इधर मोस्ट टाइम पे करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज होगा, यानी डी बाई डी टी हमने लिया नेगेटिव, नेगेटिव डी बाई डी टी लेने से पोटेंशियल मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ राइज अप, राइज अप के लिए ऐसी पोलैरिटी होगी। ये पोलैरिटी क्या इंडिकेट करती है? ये बैटरी में से करंट इधर गया, इधर तो करंट, इंडक्टर का एक ज काम है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू करंट को रोको। इधर करंट को बैक मार के रोकेगा, इधर तो ऑलरेडी करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग करंट को और डिक्रीज करेगा, इस तरह की पोलैरिटी थ्रू मोस्ट आईएमपी। सो दिस इज यू कैन सी दैट राइज अप वोल्टेज रिलेटेड कहानी। तो ये मोस्ट आईएमपी आपको किरचॉफ्स लॉ मैंने अप्लाई किया। देखो आप इस तरह जा रहे हो, अगर बैटरी का पॉजिटिव आता है तो अपन लोग नेगेटिव ईएमएफ लेते थे, चेक नेगेटिव ईएमएफ, और बैटरी का नेगेटिव आता है हम इस तरफ जाते नेगेटिव तो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव लेते थे, याद करो। तो यही कहानी इसमें मोस्ट टाइम पे आपको कुछ पता ना चले तो इतना याद रखना, कोई भी इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा अगर वो इंक्रीज हो तो ये फॉर्मूला लेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और अगर करंट डिक्रीज हो तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर? इट इज प्लस एल डी बाई डी टी सुप्रीम। ये रेडी हो जाना चाहिए। अगर इतना जिसे कह सकते चकाचक हो गया मतलब न्यूमेरिकल बन गए इजी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसलिए अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा लेक्चर इसमें रहना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा और पूरा लेक्चर अपन लोग इसमें रहने वाले हैं। मास्टरपीस यू कैन सी इंडक्टर। और ये जो तीसरा हीरो की एंट्री हो चुकी है, कैपेसिटर रजिस्टर में हमने मास्टरी ली, अब अपन लोग इसमें लेना चाहते हैं। मुझे ये पोर्शन चकाचक चाहिए, ये डायग्राम ना याद रहे तो इतना तो खास कर ही देना है, ये लिख के लर्न कर दो मोस्ट आईएमपी। So friends, next time we would like to think about the Supreme Part 7 and be ready for it. Thanks.